God, yeah. Thank you for that. Actually, I forgot to start it. Yeah, thanks for the reminder. Okay. So, what we have divided the overall AZ 900 plus into 5 milestones. Okay, because okay, we need to hide this. This is bothering me. Okay, so if you see this, we have used a project management tool which is named as Zoho, and I was working on this as a POC for one of the client, and I thought to like record it for our this sessions. So I have segregated or I have divided this in 5 phases, 5 milestones. So milestone 1, then we have 2, 3, 4, and 5. Fifth one is optional. I will just browse out very quickly over here, and then we can start with the Azure. So obviously we are going to start with the milestone 1, which is Azure Fundamental. Here, if you see, we have 3 tasks: basic discussion, cloud provider, Azure navigation. Then we have managing the subscription and resources, overview of resource and resource group, access management. Then we are going to start with virtual network. I need to say, okay, deploying and managing virtual machine. So Azure virtual machine, Azure virtual machine creation. Then we have Q&A. So in this also, like what are the major tasks that we are going to do? So I have given, okay, Windows virtual machine, Linux, Windows web VM, Linux web VM. So this is a sort of thing that we are going to perform. Okay. So now we have this. So similarly, if I go further, we have this one I have kept this. Okay, then we have virtual network. We'll discuss about understanding the Azure network, Azure storage. So if I go over here, understanding network, VNet and subnet, we will discuss about. Yeah, this is blocking. Then gradually we have storage. In storage, we are going to discuss about Azure virtual machine storage and so on. Moving ahead, we have fifth milestone, which is optional, and it is purely based on our mutual understanding whether we need it or not, from me and from you guys. Okay, where we will discuss advanced for Azure Virtual Network. Here we'll discuss reviewing of IP address, network routing. Then we have securing virtual network. So here we will discuss about NSG service endpoint. So this is about the overall discussion that we have. So I will actually take for every session, like starting 2 minutes would be, we will discuss about this, and ending 2 minutes, we will discuss about this portal, so that after once we have done a specific task, I will close it over here, and then I will share the report with you guys so that you are aware where we are reaching right now. Okay, I hope that was enough information. Okay, so let me start with this. Share, and then I share specific things. I am sharing my screen. 1 second. Let me know once it is shared. I am sharing my screen now. It is for the PPT that I have created. 1 second, it is unshared.
Okay, here we have. Okay, so this is for the 3rd June. Okay, we have. Okay, so my target was to complete this slide in the last session itself, but it stretched a lot and we didn't got the chance to discuss about it. Let me discuss about what is cloud resource and resource group certification, and then we'll move towards the Azure portal side of navigation. As these are very basic fundamentals, so I will move very quickly, but if there is any queries or questions, please drop them in the chat box. Shahbaz Bhai and Sudeep has also joined. They are in a good position to answer all your queries. Okay, so this is what we start. So basically, why cloud? What is cloud? Why Azure? What is Azure? So ये 4 पॉइंट अगर हमको समझ में आ जाता है, so let me repeat it के I will keep the conversation in Hindi and English as well both. Okay, so हमको ये समझना कि cloud क्या है, what is cloud, why Azure, what is Azure. Okay, so I will just run through very quickly. Okay, this slide also I will share it. Okay, so now why cloud? Because जो पहले के जो दो environment थे which are ऑन प्रीमाइस एंड वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड डायरेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था. जब भी एक डेवलपमेंट होता है, इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द रियल प्रिंसिपल इज पिक्ड अप फ्रॉम द रियल लाइफ एंड द प्रोडक्ट और द एंड सर्विस इज मेड. ओके, सो क्लाउड का कॉन्सेप्ट पहले से था. इट हैज बीन लॉन्ग, आई वुड से मोर देन 100 years इट वाज देयर. लेकिन क्लाउड अभी आया. क्लाउड से पहले वर्चुअलाइजेशन था, वर्चुअलाइजेशन से पहले था डेटा सेंटर. ठीक है, और क्लाउड ने इतना ग्रोथ किया, लाइक इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल. सो एक हाई लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज अ डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर ये होता है कि जहां पे आपकी फिजिकल एक बिल्डिंग हो, वहां पे आपके फिजिकल सर्वर्स हो, वो आपका डेटा सेंटर हो गया. लेट्स से मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, सो आई वुड बी हैविंग 10 सर्वर्स फॉर एग्जांपल, लेमन एग्जांपल, राइट. अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ सर्वर है वो कम हो जाता है, लेकिन आपके डिपेंडेंसी रहती है हार्डवेयर में. अभी भी आपका डेटा सेंटर है, लेकिन जहां पे आपके 10 फिजिकल सर्वर्स थे, अब वो 10 घट के आपके हो गए माइट बी 3, 4 और 5. ओके, एंड व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज समथिंग वेयर यू डोंट हैव, एक सिंपल सा टर्म मैं देता हूं. मैंने भी एक अपने ट्रेनर से सुना था कि फ्रॉम फिजिकल, फ्रॉम द ऑन प्रीम टू क्लाउड यू गो मोर, you lose the ability of touch and feel. ओके, टच एंड फील आप अपने डिवाइस को, अपने सर्वर को आप नहीं कर सकते. जब अब जो आपका लोकेशन था, डेटा सेंटर था, एवरी सर्वर यू आर अकाउंटेबल. अब वो चीज आपकी कम होते होते इस कदर आ गई कि लाइक इन क्लाउड यू डोंट हैव एनी थिंग टू. मुझे अगर कोई बोलेगा कि भाई बताओ क्लाउड में आपका सर्वर कहाँ है, आई कैन शो हिम, बट मैं उसको ले जाके अपने सेलफोन की तरह दे नहीं सकता हूँ. दैट इज समथिंग क्लाउड. ओके, अब क्लाउड में भी आगे वेरिएशंस आए, लाइक इट हैज अ 3 मेजर वेरिएशंस व्हिच इज, और आई वुड से 3 ब्रांचेस, दैट इज मोर प्रिसाइज, टू बी मोर प्रिसाइज, लाइक IaaS, which is infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, and SaaS, software as a service. We will understand this, like what are these 3 definitions, and we will then get into the practical mode. Okay, so I think most of you are aware about the cloud. Okay, अब ये cloud के बाद क्या आ रहा है? What is the next call that we have after cloud? क्लाउड के बाद आपका आ रहा है कंटेनराइजेशन, लाइक आपका AKS हो गया, कुबरनेटिक्स हो गया, ये हो गया. अब उसके पैरेलल में एक जो चीज चल रही है विच इज AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. ओके, सो मैंने आपको आगे का बताया, बट वी हैव टू फोकस ऑन क्लाउड. अब अगर मैं आगे देखता हूं क्लाउड का डेफिनेशन क्या है. ओके, हर एक का क्लाउड का कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं, बट एक NIST इंस्टीट्यूट है, उन लोगों का डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे. एवरी वन
हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड फॉर ईच पर्सपेक्टिव। एकेडमिक के लिए वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, आर्किटेक्ट्स के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट आर्किटेक्ट्स इट्स अ क्लाउड आर्किटेक्ट, उनके लिए अलग पर्सपेक्टिव है। व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपर्स एंड मैनेजर्स, प्रोवाइडर्स, कंज्यूमर्स, उनके लिए वो एक अलग चीज है। सो फॉर मी क्लाउड इज अ टेक्नोलॉजी, okay, for a person who is not aware about cloud. Okay, let me give you I will park that example as of now. Let me run through this slide and I will give you that example later on. Okay, so अभी मैं अगर आगे बढ़ूं, NIST का डेफिनेशन है। ये NIST में कभी भी इसका फुल फॉर्म बताता नहीं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सर्च करें कि क्या है, व्हाट इज NIST। ओके, okay, so they define cloud model for enabling like on demand आपके नेटवर्क सर्विसेज हो, जहाँ पे आपको ऑन डिमांड आपके नेटवर्क मिल जाए, स्टोरेज एप्लीकेशंस मिल जाए, यू हैव अ रैपिड सर्विस wherever you required। इसके थ्री एसेंशियल्स, ये जो है ना, आई नो इट इज फ्रॉम द theoretical, you must be thinking कि बहुत theoretical जा रहा है ये, लेकिन आपको आगे जो सर्विस समझना है ना, उसके लिए ये तीन 5 essential characteristic, 3 service model, 3 deployment model, this is very very required because आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट, आप ये चीज अपने क्लाइंट को भी नहीं समझा पाओगे एंड आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है शाबाश भाई, कोई ग्रुप पे मैसेज डाल रहा है, दे कांट ज्वाइन, प्लीज लुक इनटू इट। Okay, so the cloud model is composed of 5 essential characteristics, 3 service model and 3 deployment model. Let us go through that quickly. Okay, so ये हमारे essentials हो गए, 5 essentials: on demand, broad network access, resource pooling, rapid elasticity and measured services, very fast. Okay, ऑन डिमांड में अब हमारा ऑन प्रीमाइस में क्या होता था, जब हमारा डेटा सेंटर फिजिकली रहता था, आई हैव टू कॉल एचपी, डेल और whoever is the service provider to procure a specific हार्डवेयर। अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो बंदा 15 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, महीने 2 महीने, आई हैव सीन लाइक 3 मंथ्स और मोर देन हमको एक डिवाइस प्रोक्योर करने में लग जाता था। बट इधर क्या हो गया, इट इज लाइक ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, यू कैन टेक इट ऑन योर ओन। ब्रॉडर नेटवर्क, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट के अभी यही नेटवर्क है, मैं इसको वहां से ही जाके एक्सेस कर सकता हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन से, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम योर सेल फोन ऑल्सो। रिसोर्स पुलिंग है, रिसोर्स आप, यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, ह्यूज इलास्टिसिटी, यू हैव अ वेब सर्वर, यू नो दैट कि अभी थैंक्स गिविंग डे आने वाला है, you have a web server, you have a e-commerce website running, you are running good with your 2 web servers, right? But at the same time when the Thanksgiving is coming, you know कि like अभी जो मेरे इतना ट्रैफिक आने वाला है कि I would need 10 more servers, okay? But वो अगर आप न्यू हार्डवेयर लेकर आ जाओ, थैंक्सगिविंग के बाद क्या होगा, फिर वापस आपके जो 10 सर्वर है, इट इज नॉथिंग मोर देन अ स्क्रैप फॉर यू। और लाइक क्या टर्म रहता है, कमर्शियल टर्म है, उसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि एक लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू, राइट? तो आपको वो चीज नहीं करना है। क्लाउड क्या बोलता है कि भाई स्केल करो और फिर उसको स्केल डाउन करो। तो रैपिड इलास्टिसिटी, एवरीथिंग यू आर डूइंग इज बीन मेजर्ड, लाइक आपकी इलेक्ट्रिक की बिल जो आती है, आपको पता चलता है कि भाई अपने इतना यूनिट किया है, ठीक है? सो यू हैव एवरीथिंग measured, you have everything measured, so this is essential characteristic। सर्विस मॉडल, ये जो मैं आपको बता रहा था, वो ये चीजें तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये अगर नहीं आपका होता, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कब पूछेंगे, व्हेन यू आर वर्किंग विद CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो तो इस चीजों के एक एक क्वेश्चन को आपको ड्रिल डाउन करेगा। ओके, इररिस्पेक्टिव आप एडवांस हायर पोजीशन पे जा रहे हैं या स्टार्टर उसमें। ओके, सर्विस मॉडल क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS एज अ सर्विस। ये इसको हम लोग एग्जांपल के साथ एक समझेंगे कि क्या है। डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल क्या है हमारा, प्राइवेट क्लाउड एक होता है, एक होता है पब्लिक क्लाउड होता है, और एक रहता है मेरा हाइब्रिड क्लाउड, मतलब मेरे प्राइवेट भी है उसमें और पब्लिक भी है, ठीक है? अभी ऑन गोइंग में आपको एक बता दूं, एज्योर में जो प्राइवेट क्लाउड है उसको बोलते हैं एज्योर स्टैक, एज्योर जो पब्लिक क्लाउड है वो पब्लिक क्लाउड है, राइट? अगर आप पब्लिक स्टैक और एज्योर दोनों यूज कर रहे हो तो आपका हाइब्रिड क्लाउड हो गया। लेकिन हाइब्रिड हाइब्रिड का एक और चीज रहता है कि आप हाइब्रिड क्लाउड नहीं, लेकिन हाइब्रिड आप कब बोल सकते हो, आपके ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट भी है, आपका वर्चुअलाइजेशन भी है, आपका क्लाउड भी है, तो उसको आप हाइब्रिड नाम दे दो, हाइब्रिड क्लाउड मत बोलो, ठीक है? Moving to next slide, I will take the questions in later stage, but please drop your comments or questions in comments. So if there is anything, I would
अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद का जो आपका कोर्स आई वुड सजेस्ट कि आप जो कर सकते हैं वो है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, और उससे पहले AZ 900 जो